السلام علیکم، سچ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ سب سے پہلے ذکر کربلا والوں کی عظیم قربانی کا۔ شہدائے کربلا کی عزاداری اپنی انتہا کو پہنچ چکی۔ 9 محرم منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر سے۔ دین محمدی کی بقا کے لیے امام علی مقام نے اپنے نانا کے ہم شکل پیغمبر کو بھی قربان کر دیا۔ آج انہی کی یاد میں شہر شہر نگر نگر جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا تیرے ابالا اکبر۔ کربلا معرکہ حق و باطل اور عشق خدا میں امتحان کا نام ہے۔ 10 محرم کو دشت کربل میں امام حسین علیہ السلام کے جواں سال بیٹے ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام آذان سے صبح عاشور کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید کہا گیا ہے۔ علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ علی اکبر بھی دین خدا کے لیے اس رجز کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضی علی، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکان والا، مکان والے۔ فوج یزید کے سپہ سالار عمر سعد سے آپ نے کہا، اے عمر سعد، یاد رکھ، تو موت کا خوف دلا کر مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر فوج اشقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو آؤ پھر ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر سائقہ بن کر چمکی، ایک ہی حملے میں 10 کو واصل جہنم کیا۔ شہسوار پیچھے ہٹنے لگے، آخر مرتا بن منتقص جہنمی نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا، جس کا پھل جگر میں اتر گیا۔ بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا تیرے ابالا۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس پہنچے، اپنے رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے قوم اشقیہ کے لیے فرمایا، اے بیٹا، یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا، جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے۔ 9 محرم منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر سے، جن کی یاد میں ملک کے کونے کونے میں ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد شہدائے کربلا کو پرسا پیش کر رہی ہے۔ حیدرآباد کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ جلوس میں شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح اور علم سمیت دیگر تبرکات شامل ہیں۔ شرکاء اپنے مخصوص انداز میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کے مختلف مقامات پر نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ سکھر کے قریب روڑی میں تاریخی 500 سالہ نوڈھالا ذریعہ اقدس کربلا معلیٰ کا ماتمی جلوس صبح فجر سے قبل برآمد ہوا۔ 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب سے شروع ہونے والا ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے اور یہ 3 مراحل میں مکمل ہوگا۔
मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज आबाद से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मुकर्ररा जगह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों ने अपनी मददाब के तहत पानी की सबीलें और नजर न्याज तकसीम की। रावलपिंडी में भी शहजादा अली अकबर की निस्बत से मातमी जुलूस अलम-ए-जुलजना और ताजिया सैयद वाजिद अली काज़मी की रिहाइश चिट्टियां हट्टियां रावलपिंडी से बरामद हुआ। जुलूस चिट्टियां से वाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर होगा। सफदराबाद में शहजादा अली असगर की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ कस्बों से दर्जनों जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं जो शुहदाए करबला को अपने मखसूस अंदाज में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। चकवाल में भी खानवादा रसूल के अज़ीम कुर्बानियों की याद में इमाम बारगाह गुलस्तान ज़ोरा से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए और अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जुलूस के दौरान उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला भी बरामद किया। राजनपुर की तहसील रोजा और दीगर इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हुए जो अपने अपने रवायती रास्तों पर रमा दमा है। बिहाड़ी में भी शहजादा अली असगर के झूले का मरकजी जुलूस शफकत अब्बास हैदरी की रिहाइशगाह अली लाज दानेवाल से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर अबू तालिब एफ ब्लॉक में इख्तिताम पजीर होगा। गुजरांवाला की इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से कदीम रवायती जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्रर रास्ते पर रमा दमा है। जुलूस में शुरका अपने अपने अंदाज में शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मातमी जुलूस लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 से बरामद हुआ। जुलूस में शबी, ताबूत, शबी जुलजना और अलम पाक समेत दीगर तबरुकात शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 से अंजुमन गुलदस्ता अली अकबर के ज़ेर एहतमाम बरामद हुआ। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना और अलम पाक समेत दीगर तबरकात शामिल हैं। मातमी जुलूस में अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। जुलूस में शुहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। मरकजी जुलूस में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी करते हुए बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को इनके लाल का पुरसा पेश किया। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। इस्लामाबाद में भी अज़ादाराने हुसैन की प्यास बुझाने के लिए शहदाए करबला की याद में जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया जाता है। शहदाए करबला की प्यास की याद ताज़ा करने के लिए लगाई गई सबीलें गुज़श्ता कई बरसों से अज़ादारों की प्यास बुझा रही हैं। वाक़ई करबला हक व बातिल का सबसे बड़ा मार्का। इस्लामाबाद में भी हस्बे रिवायत मातमी जुलूसों के रास्तों में जगह जगह पानी और ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम किया गया है। ऐसी ही एक सबील G62 में गुज़िश्ता 12 साल से लगाई जा रही है। अज़ादार सबीलों से अपनी प्यास बुझाते हैं और शोहदाए करबला की प्यास को याद करते हैं। ये लफ्ज़ सबील जो है, ये क्योंकि इमाम के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ था, तो आज तक ये जो पानी नहीं कहलाता, ये सबील कहलाती है। इसका बैकग्राउंड ये है और उनकी याद में यहाँ पर जो आए पानी पिए। अकीदतमंद कहते हैं कि शोहदाए करबला की याद में सबीलें लगाना बाइसे सवाब है। हर साल मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही पानी और मशरूबात की सबीलें लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये सबील जो लगाई जाती है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके प्यासे बच्चों की याद में लगाई जाती है, जो कि 61 हिजरी में वाक़या करबला पेश आया था। तो उसमें 3 मुहर्रम उल हराम से बच्चों पे उन सब पे पानी बंद कर दिया गया था। अज़ादार कहते हैं कि शोहदाए करबला ने मौसम और प्यास की सख्तियां बर्दाश्त की और वो अजीम कुर्बानी दी जिसे ता क़यामत फरामोश नहीं किया जा सकता। शोहदाए करबला की याद में हर साल यहाँ सबील लगाई जाती है। अकीदतमंद कहते हैं कि आने वालों की प्यास बुझाने के साथ ये अहद भी किया जाता है कि हक और सच की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन सती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहदाए करबला की याद में हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक लंगर तकसीम करता है। ये सिलसिला बिलखसूस 9 और 10 मुहर्रम को बाइसे बरकत समझा जाता है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अवान।
لنگر حسینی حاضر ہے ان معصوموں کے نام جو بھوکے پیاسے اللہ کی راہ میں حق سچ کی راہ میں شہید ہوئے۔ صادق آباد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو خصوصی لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صادق آباد کے شہری کی جانب سے 15 سال سے خصوصی درجنوں دلیب کی دیگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 15 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ محرم الحرام میں 9 اور 10 محرم کو حسینی لنگر تیار کیا جاتا ہے اور اس دفعہ بھی 40 دیگیں کراچی سے آئے ہوئے کاریگروں کی زیر نگرانی تیار کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو صادق آباد میں 9 اور 10 محرم کو حلیم پکایا جاتا ہے۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حلیم کھانے آتے ہیں اور ہم بھی حلیم کھانے آتے ہیں۔ ہم 15 سال سے آ رہے ہیں یہاں پر حلیم پکانے کے لیے صادق آباد میں، اور 40 دیگیں بنائی ہیں ہم نے، اور محرم الحرام کے اندر خصوصی طور پہ صادق آباد میں اہتمام کیا جاتا ہے حلیم کے لنگر کا۔ اس میں تقریباً کافی مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، دالیں ڈالی جاتی ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق لنگر و نیاز تقسیم کرے تاکہ کوئی بھی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ محرم سے ہی لنگر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر 9 اور 10 محرم کو تقسیم ہونے والا یہ حلیم بچے بوڑھے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ اسلام آباد میں ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کی یاد میں مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے، جو اس وقت لال کوارٹر سٹاپ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد 1-2 سٹاپ پر لنگر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں محمد اسلم کھوکھر سے۔ جی اسلم۔ جی بالکل، 9 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس اسنا عشری سے برآمد ہوا تھا اپنے روایتی راستوں پر اس وقت رواں دواں ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو مرکزی جلوس ہے اس وقت لال کوارٹر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر ابھی ماتم داری ہوگی اور پھر یہ جلوس جو ہے وہ آگے روانہ ہوگا۔ عزاداران حسین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جلوس میں شامل ہے، جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، بزرگ حضرات، سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو مرکزی امام بارگاہ اسنا عشری میں ہی اختتام پذیر ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جلوس جب 1-2 سٹاپ پر پہنچے گا تو وہاں پر لنگر کا ایک وسیع انتظام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سبیلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اب جو جلوس ہے تقریباً 1:30 بجے جو برآمد ہوا تھا اسنا عشری سے، وہاں پہ جو نماز ظہرین ہے وہ ادا کی گئی بعد جماعت۔ اس کے بعد یہ جلوس برآمد ہوا اور یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہے۔ جو عزاداران حسین ہیں وہ ماتم داری کر کے اور نوحہ خوانی کر کے مظلومین کربلا حضرت امام حسین اور ان کے جانثاران ساتھی جو ہیں ان کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسلم کھوکھر۔ ادھر پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال سے نکلنے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس میں عزادار شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے پہلا شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے صبح 10 بجے برآمد ہوا، جو کہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت جلوس جو ہے وہ فوارہ چوک پہنچ چکا ہے۔ کالا باڑی اور خیبر روڈ سے ہوتا ہوا یہ پہلے کالا باڑی پہنچا، جہاں پر جو عزادار ہیں، جو جلوس کے ساتھ عزادار تھے، انہوں نے نماز ظہرین جو ہے وہ ادا کی ہے۔ علامہ وزیر حسن ذاکری صاحب نے جو ہے یہاں پر کالا باڑی کے مقام پر جو ہے نماز ظہرین پڑھائی۔ اس کے بعد جو ہے جلوس ایک بار پھر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہو گیا۔ فوارہ چوک پر اس وقت جو ہے جلوس پہنچ چکا ہے۔ ادھر جو ہے مجلس عزا جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، باقاعدہ طور پر مجلس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں سے ایک بار پھر جلوس جو ہے وہ رواں دواں ہوگا اور واپس اپنی ہی امام بارگاہ پر جا کر، جو حسینیہ ہال کی امام بارگاہ ہے، وہاں پر جا کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جلوس میں ایک بڑی تعداد میں عزاداران حسین جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کر کر کربلا کے شہداء کو پرسہ پیش کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو بہترین انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر جو ہیں مختلف قسم کی جو سبیلیں ہیں وہ لگائی گئی ہیں عزاداروں کے لیے، جہاں پر عزاداروں کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ دودھ، شربت اور دیگر جو روح افزا کی شربت جو ہیں ان سے وہ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سیکیورٹی خدشات کے جو پیش نظر ہے، موبائل فون جو ہے وہ مکمل طور پر جزوی طور پر بند کی گئی ہے۔ 9 محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے موقع پر موبائل سروس پشاور اور خیبر پختونخوا میں مکمل طور پر بند رہے گی۔ عدنان شاہد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، علی کی آنکھ کا نور حسین، نبی کے دل کا چین حسین۔ 9 محرم الحرام دنیا کربلا کے شہداء کا غم منا رہی ہے۔ دنیا بھر میں لبیک یا حسین پکارتے عزاداران امام حق کی انسانیت کے لیے دی جانے والی قربانی کا
दर्स दोहरा रहे हैं। दुनिया भर में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ईरान से लेकर फलस्तीन और मशरक़ वस्ता से लेकर अफ्रीका तक हर जगह लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा गूंज रही है। दुनिया भर में आज 9 मुहर्रम की आज़ादारी दुनिया के लाखों अकीदतमंद शहदाए करबला की याद में अश्के गम बहा रहे हैं। पूरे ईरान में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। आलमी वबा कोरोना की वजह से ईरान में मातमी जुलूस बरामद नहीं हो रहे। इराक के मुक़द्दस शहर करबलाए मुअल्ला में क़यामत का सा मंजर है। नजफ, काज़मीन और सामरा की फ़ज़ाएं लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के फलक शगाफ नारों से गूंज रही हैं। हजारों की तादाद में सोगवारान मजलूम करबला जमा इमाम मजलूम करबला का गम मना रहे हैं। इराक में नजर न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी, शरबत और चाय की सबीलें लगाई गई हैं और अज़ादारों में नजर न्याज भी तकसीम की जा रही है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी अज़ादार मजालिस और जलूसों में शरीक हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे बावफा की शहादत पर पुरसा पेश कर रहे हैं। कश्मीर में पाबंदियों को तोड़कर अज़ादार शहदाए करबला का गम मना रहे हैं। शाम में बरपा मजालिस में ज़ाकिरीन कराम शहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। तुर्की, नाइजीरिया और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। अज़ादारान हुसैन की मजालिस दर हकीकत इस बात की निशानदही करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर और इंसानियत की मेराज है। कराची में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस में शरीक अज़ादारान कहते हैं कि शहदाए करबला की कुर्बानियां हमें आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी 9 मुहर्रम के हवाले से मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची में जो मरकजी जुलूस है वो निश्तर पार्क से बरामद हो चुका है, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इस्लाम पजीर होगा। खारादर के अंदर जुलूस में जो है शुरा इंतहाई बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंतहाई जो है जो मजहबी आमांगी है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। कुछ अज़ादार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, जो शहदाए करबला की कुर्बानी है आज के मुसलमानों को हमारे लिए क्या मैसेज है इसके अंदर बताएं। शहदाए करबला की जो कुर्बानी है अजीम कुर्बानी है। दुनिया ने ना आज तक ऐसी कोई कुर्बानी देखी ना देखेगा। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि ना हमें किसी का खौफ होना चाहिए ना किसी का डर। बस अल्लाह की खातिर अगर हमें अपनी जान की भी दरेग नहीं करना चाहिए और इस्लाम की खातिर अगर हमें अपनी जान कुर्बान नजराना करना चाहिए तो हमें अपनी जान का नजराना पेश करना चाहिए। वहाँ पर छोटे बड़े अज़ादार सारे मौजूद थे इमाम के लश्कर के अंदर, उन्होंने सब ने अपनी जानें खुदा के राह में नजराना पेश किया सिर्फ इसी वजह से कि उनके नाना का दीन बच जाए, इस्लाम बच जाए। तो ये एक अजीम कुर्बानी है जो मिलकर हमें इसकी याद दिलाती है कि किसी का खौफ खतर नहीं होना चाहिए, ना वक्त का, ना इस वबा का, ना किसी चीज़ का। इसलिए माशाल्लाह अज़ादार इस वबा में भी मौजूद हैं, तो इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें इस चीज़ की याद दिलाती है। तो आप और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो पूरे आलम इस्लाम के लिए है, हमारे लिए खासतौर पर मुजाहरा करें और मिलजुल कर कराएं, आज़ादारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आज़ादार मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि शहदाए करबला की जो कुर्बानियाँ हैं हमें आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत और इत्तेफाक का जो है वो दर्ज देती है। और इसलिए कदीर राना आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में हजरत अली अकबर की याद में बरामद होने वाले जुलूस के शुरका के लिए दूध, शरबत और मीठे पानी की सबीलों का एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद।
जी बिल्कुल, 9वें मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुल्तान में इस वक्त मुल्तान और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस जो है वो अपनी बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद किया जा चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें हज़ारों के करीब आज़ादारैन हुसैन शरीक हैं और इस वक्त मातमदारी का सिलसिला जारी है। पहले एक मजलिस बपा की गई थी और उसके बाद ही इस जुलूस की इब्तदा की गई है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों पर इस वक्त गामजन है और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर ही इख्तिताम पजीर हुआ गया जहाँ से इसकी इब्तदा हुई थी। इसमें इस वक्त मुख्तलिफ अलम और शबीह जुलजना के जुलूस जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी खासे मुनासिब इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और मोबाइल सर्विस भी इस वक्त मुल्तान में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। आज़ादारी सैयद शाहदा का सिलसिला दुनिया भर में इंतहा को पहुंच चुका है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी मजालिस हो रही हैं। न्यूयॉर्क में मजलिस से खिताब करते हुए समाजी रहनुमा आगा शौकत जाफरी ने फजाइल और मसाइब आले मोहम्मद बयान किए। उन्होंने कहा कि दुनिया का यह वाहिद गम है जो किसी भी सरहद और जबान का मोहताज नहीं। इंसान दोस्त सभी मजलूम करबला के गम में बराबर के शरीक हैं। करबला में बातिल कुव्वतों के सामने एहतजाज करने वालों के लिए आज दुनिया भर में आवाज बुलंद की जा रही है। दुनिया ने आशूरा के जुलूस में कोरोना वायरस से मुतालिक इख्तियार की जाने वाली SOPs के भी अहदेदारों को आगाह किया है। इमाम बारगाहों को शहदाए करबला के खैमों से खास निस्बत है। खैमागाहों में करबला में काफिला हुसैनी अलैहिस्सलाम मकीम हुआ। अज़ादारान इन खैमों की याद कायम रखते हुए इमाम बारगाहों में मजलिस बर्पा करते हैं। मजीद तफसीलात मुलाहिजा करते हैं आसिफ रजा के इस रिपोर्ट में। नवाबशाह में मबदुल उलूम समेत तकरीबन 14 इमाम बारगाहें हैं जहां पर मुहर्रमुल हराम और उसके अलावा दीगर अय्याम में भी मजालिसें बर्पा की जाती हैं। इन तमाम इमाम बारगाहों में सज्जादिया हुसैनिया जिसे शबीए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तामीर किया गया है। सज्जादिया हुसैनिया इमाम बारगाह को देखकर इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का तस्वुर होता है। तो काफ़ी कदीमी इमाम बारगाह है और इस इमाम बारगाह से जो है हर 7 मुहर्रम को झूला निकलता है, 8 मुहर्रम को जो है वो अलम बरामद होता है गाजी शहनशाह का, 9 मुहर्रम को ये वाहिद इमाम बारगाह है नवाबशाह की जहाँ पे आग का मातम होता है और शहजादा कासिम की मेहंदी निकलती है। और ये नवाबशाह की वो वाहिद इमाम बारगाह है जिसमें सुबह दौरान फजर जंजीर जनी होती है और शहजादे अली अकबर का जो मौला हुसैन के बेटे थे हम शक्ल पैगंबर उनका जो है वो ताबूत बरामद होता है 9 मुहर्रम को। मैं सर इस इमाम बारगाह का पुराना तमीम मुलाजिम हूँ, ड्यूटीदार हूँ। साईं बूरी शाह बादशाह के वक़्त से जब से ये इमाम बारगाह तामीर हुई है, जब से मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, जारूब कश इस इमाम बारगाह का, खादिम इस इमाम बारगाह का और ये साईं बूरी शाह बादशाह की सब मेहनत है, सब जान है। ये सारे प्रोग्राम जो है साईं बूरी शाह बादशाह कराते थे और बड़े जुलूस यहाँ पर आते हैं, पूरे शहर की अवाम यहाँ आती है। यहाँ पर आज़ादारी के सिलसिले से जो है पूरा शहर आता है। देखने वाले ज़ायरीन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। सज्जादिया हुसैनिया में आशूर के 10 रोज तक मुसलसल मजालिसें बर्पा की जाती हैं। सज्जादिया हुसैनिया इमाम बारगाह में एहले बेत अतहार की तशबीहात का ज़री खाना बनाया हुआ है जिसमें तबर्रुकात रखे गए हैं। और अब जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबे का जिसने यजीदियत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन इतना ही छा रहा है। मार्का करबला के बाद यजीद और इसके हवारी अपनी खुवत और शर के बलबूते पर मकसद हुसैन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दुनिया के सामने इमाम अली मकाम की बहन जिन्हें दीन इस्लाम की आबेयारी के लिए कुर्बानी की वजह से शरीकतुल हुसैन कहा गया कि खुतबात ने यजीद के सारे अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने अपने खुतबात से ऐसे इनकलाब की बुनियाद डाली जिसने थोड़े ही अरसे में यजीद की जालिमाना और इस्लाम दुश्मन हुकूमत का नामो निशान मिटा डाला। हैदर करार और सैयदा निसाए आलमीन की आलिमा फाजला बेटी बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में इसकी हकीकत बयान करते हुए फरमाया,
तू समझता है कि तुझे दुनिया मिल गई, तेरे मामलात मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गए, हमारा मुल्क तेरे कब्जे में आ गया और हमारी सल्तनत तुझे हासिल हो गई। ठहर जा जहालत से, इतना ना उछल, क्या तू अल्लाह का इरशाद भूल गया? हरगिज ये ख्याल ना करो कि हमने काफिरों को इसलिए मोहलत दी है कि इसमें इनकी भलाई है, बल्कि इस वजह से मोहलत दी है कि इनके गुनाह ज्यादा हो जाएं और वो जलील करने वाले आजाब में मुब्तला हो। बावफा को ढूंढती थी दुख्तरे शेरे जलवे शाम के दरबार में। ऐ आजाद करदा गुलामों के बेटे, ये तेरा इंसाफ है कि तू अपनी बीवियों और लौंडियों को तो पसे पर्दा रखे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके दरबदर फिराए। तूने हमारी हद तक की हुर्मत की, हमारे चेहरों को बेनकाब किया, तेरे हुक्म से हमें शहर शहर फिराया जा रहा है। इसी तरह जब इन्हें बाजार कूफा ले जाया गया कि लोग आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे और इन्हें बागी कहे, बीबी ज़ैनब ने गफलत में डूबे लोगों को इन अल्फाज में झंझोड़ा। तुम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे जब सरकार रिसालत तुमसे फरमाएंगे, अरे तुमने आखिरी उम्मत होकर ये क्या किया? मेरे अहले बैत, मेरी औलाद और मेरी इज्जत और हुर्मत के साथ यही कि बास को इनमें से कैद और बास को कत्ल किया। खौफ से मुरझा रही थी बाग़े इस्मत की कली शाम के दरबार में। इसी तरह यजीद के सिपा सालार इब्ने ज़ियाद से मुखातिब हुई, ऐ इब्ने ज़ियाद, तू कहता है कि कत्ल हुसैन से तेरी आंखें ठंडी हुई, लेकिन हुसैन वो थे कि जिनके दीदार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती थी। हजरत इन्हें चूमते थे, इनके होंठों को चूसते थे, हुसैन और इनके भाई हसन को पीठ पर बिठाते थे। बस तू आज़ाब इलाही और जवाब दही के लिए तैयार हो जा। बीबी ज़ैनब के इन खुतबात ने दरबार यजीद में हलचल पैदा कर दी। यजीद को दरबार से बाजार और कूचा में बगावत पैदा होती नजर आई, जिस पर इसने खौफ ज़दा होकर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद खानों से निकालकर वापस मदीना भेजने में आफियत समझी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फलसफा हुसैनी की एक झलक कश्मीर में दिखाई दे रही है। वहाँ मजलूम जालिम के सामने डटे नजर आते हैं। शहरियों पर आजादारी की पाबंदी है। मुहर्रम के पुरअमन मजहबी जुलूस नहीं बरामद होने दिए जा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली से कोरोना को शिकस्त हुई। माहिरीन तो कह रहे थे कि अगस्त तक पाकिस्तान में 50,000 हलाकतें होंगी, 20 से 25 लाख अफराद मर्ज का शिकार हो चुके होंगे, लेकिन अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हुआ। हुसैन के फलसफे की हमें अमली मिसाल दिखाई दे रही है। वो इस वक्त उसकी एक झलक आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दिखाई दे रही है। पिछले एक साल में तो आपने देखा कि जिस अंदाज में जबर किया गया, जिस अंदाज में दबाया गया, आवाज दबाई गई, ये जो ज़राए अबलाग हैं उन्हें महदूद कर दिया गया। इंटरनेट का जो एक्सेस है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज जो है वो मुसलसल जारी है। ब्लैकआउट जो है वो मुसलसल जारी है। क्यों? खौफ की वजह से उन्होंने वो जबर जारी रखा हुआ है। भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मजहबी आज़ादी का तक़द्दुस पामाल होना मामूल ही बन गया। मुसलमानों को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने से रोका जाने लगा। जनूबी कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई। जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत ने जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। अपने ज़ेर कब्जा वादी में मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाते हुए मुसलमानों को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने से रोका जाने लगा। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद नौजवान मुजाहिरीन सड़कों पर निकले, नारेबाजी की, जिन्हें भारतीय फौज ने तशद्दुद का निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला कम न हुआ। मकबूजा कश्मीर में मजहबी तक़द्दुस की पामाली मामूल बन गई। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में
मोदी की जालिम फौज ने गोलियां मारकर 3 निहत्ते बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई। कराची वालों की मुश्किल पर सदर और वजीर आजम भी मैदान में आ गए। सदर पाकिस्तान कहते हैं सदर मुमलिकत कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची वालों को मुश्किल से निकालेंगे। कराची वालों की मुश्किलात पर सदर और वजीर आजम भी चुप न रह सके। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची वालों की ढारस बंधाते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। कराची की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कराची और सिंध वालों का भरपूर साथ देने का भी वादा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का मुकम्मल एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। इस मुश्किल घड़ी में एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। कूड़ा क्रिकेट और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कराची के अवाम को पीने के पानी की फराहमी का सिलसिला हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने वजीर आजम को कराची जाने का मशवरा दे दिया। बोले लोग कराची सफाई के मसले पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। वजीर आजम खुद जाएं और देखें कि उनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने एक बयान में कराची की मौजूदा हालत का सिंध की सियासी शख्सियात को जिम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना था कि लोग इक्तदार में आए और चले गए, गवर्नर राज भी रहा, मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात रहे, सियासी बयानबाजी की नजर रहा। उन्होंने मजीद कहा कि सब एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरियोज़िम्मा होते रहे। हमेशा इक्तदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। कराची में इख्तियारात का मतलब सिर्फ पैसे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम खुद कराची में 1 हफ्ता रहें। वजीर आजम कराची के हर मसले को खुद मॉनिटर और हिदायत जारी करें। वजीर आला सिंध ने कराची के शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए सख्त इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने मुतालिका इदारों को कह दिया कि उन्हें पानी के साफ कराची चाहिए। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की और कराची के बासियों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को सख्त तनबीह भी कर दी। वजीर आला सिंध का कहना था कि बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी बिजली बहाल नहीं हुई, मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। इजलास में बताया गया कि इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 170 बहाल होने बाकी हैं, जबकि KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहर्रिक नजर नहीं आया। अहलियाने कराची का इम्तिहान खत्म न हो सका। महकमे मौसमियात ने बारिशों के एक और स्पेल की खबर सुना दी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से पीर तक मजीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ेगा। शहर कायद में बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल हो चुका है, जो आज से मजीद 3 रोज के लिए बारिशों का सबब बन सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, दादू, थरपाकर, मीरपुर खास, इस्लाम कोट, उमरकोट, सक्खर और लाड़काना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी पंजाब समेत बलोचिस्तान के इलाकों मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास और बदीन में इतवार और पीर को मूसलाधार बारिश के बाइस मजीद अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस दौरान सिब्बी, कल्लात, खुजदार, लसपेला और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। रोशनियों के शहर को पानी और अंधेरे में डूबा देखने के बाद शहर के हालात मजीद खराब हो गए हैं और अब तीसरा रोज है। तबाहाल बिजली का निजाम ठीक नहीं हो सका और बाज इलाकों में शहरियों को पीने के साफ पानी की बदतरीन किल्लत का सामना है। कराची में एक और बारिश का स्पेल शुरू होने को है, लेकिन तीसरे रोज भी शहर अंधेरे में डूबा है। कुरंगी, लांधी, गुलशन इकबाल, मलीर, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजमाबाद, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, गार्डन, रामस्वामी, लियारी, किमाड़ी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती, क्लिफ्टन, डिफेंस, लाइन्स एरिया और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी तीसरे रोज भी बहाल नहीं हो सकी है। उधर के इलेक्ट्रिक ने भी बहाली के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। हुकाम का कहना है कि बेशतर इलाके ताहाल पानी में डूबे हैं। बहाली के काम में शदीद मुश्किलात का सामना है।
अगर आज से फिर मजीद बारिशें हुई तो दीगर इलाकों में बिजली की बहाली का काम मजीद इल्तवा का शिकार हो सकता है। बिजली की तवील बंदी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंकर्स का पानी भी आलूदा हो चुका है, जबकि बिजली न होने से पानी को टैंकियों में मुंतकिल करना भी मुश्किल हो चुका। बिजली की बंदी से कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मफलूज है। बाज़ इलाकों में खाने पीने की अशिया की सप्लाई भी मुतासर हो रही है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत से 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करने की सिफारिश कर दी। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी हैं। ज़राए ने बताया है कि पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। इसके अलावा आगरा ने मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज भी दी है। आगरा ने तजावीज 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर इरसाल की। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 70 पैसे पेट्रोलियम लेवी शामिल है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 25 रुपए 73 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली के सबब कोरोना दम तोड़ने लगा है। केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी वाक़ई हो रही है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद एक फर्द जान की बाजी हार गया, जबकि 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,95,372 है और 6,284 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 8,748 है और 2,80,340 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस पंजाब में 2,195 और सिंध में 2,394 अमवात हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1,250, इस्लामाबाद 175, बलोचिस्तान 141, गिलगित बल्तिस्तान 67 और आजाद कश्मीर में कोरोना से अमवात की तादाद 61 है। सिंध में 1,29,081 और पंजाब में कोरोना के 96,636 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 35,923, बलोचिस्तान 12,742, इस्लामाबाद 15,578, आजाद कश्मीर 2,277 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 2,816 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में अब तक कोरोना के 25,35,778 टेस्ट हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक अस्पतालों में 114 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,920 है। 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,076 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयद पाबंदियों के खिलाफ जर्मन के दारुल हुकूमत बर्लिन में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के शहरी सड़कों पर निकल आए। कोरोना वायरस से मुताल्लिक पाबंदियों की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर हुकूमत की जानिब से पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अदालत ने मुजाहिरीन के हक में फैसला किया। मुजाहरे में 22,000 से जायद अफराद की शिरकत कर रहे हैं। समाजी सतह पर फासला बरकरार रखने के लिए 3,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। उधर जर्मनी की 16 रियासतों की हुकूमतों ने एक रोज कबल ही ज्यादा सख्त कवानीन की मंजूरी दी है। हुकूमत का तख्ता उलटने की मंसूबाबंदी और मुजाहिरों के लिए इजाजतनामे जारी करने का इल्जाम। लीबिया की वफाकी हुकूमत ने वजीर दाखिला को काम से रोक दिया। लीबिया में वफाकी हुकूमत की सदारती काउंसिल ने वजीर दाखिला फतही अली बादशाह आगा को ओहदे से हटा दिया। सदारती काउंसिल ने फैसले में कहा कि वजीर दाखिला को 72 घंटों के अंदर सदारती काउंसिल के सामने तहकीकात के लिए पेश किया जाए। वजीर दाखिला से मुजाहिरों के लिए इजाजतनामे जारी करने और मुजाहिरीन के लिए मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुजाहिरों से मुतालिक बयानात जारी करने के हवाले से पूछगछ की जाएगी। ये मुजाहिरे इस हफ्ते के कबल के तराबलस और दीगर शहरों में हुए थे, जबकि वजीर दाखिला पर हुकूमत का तख्ता उलटने की मंसूबाबंदी का भी इल्जाम आयद है। पाक ईरान बॉर्डर के सरहदी शहर तफ्तान में यौम आशूर की मुनासबत से ईरानी सरहदी हुकाम ने तिजारती पॉइंट को बंद कर दिया। यौम आशूर की मुनासबत से पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान ईरानी सरहदी हुकाम ने 2 मुत्तसिल तिजारती गेट 0 पॉइंट और मुश्तरका बाजार चाह को तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट बदस्तूर खुला है। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान मोहम्मद वारिस के मुताबिक ईरानी सरहदी हुकाम ने यौम आशूरा की मुनासबत से 2 तिजारती गेट को तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद किया है। यौम आशूरा के मौके पर पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं।
मशरक़ी बहिरा रूम में तनाज़े के बाद यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को पाबंदियों की धमकी दे दी। पाबंदियां मशरक़ी बहिरा रूम में यूनान और क़ब्रस से कशीदगी में कमी से मशरूत हैं। यूनान के साथ मशरक़ी बहिरा रूम का तनाज़ा संगीन नौयत इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियों की तैयारी कर ली, जिन पर ब्लॉक के 24 सितंबर को होने वाले इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार कहते हैं ब्लॉक मुज़ाकरात के लिए संजीदा मौके फराहम करना चाहता है। रुकने ममालिक यूनान और कुब्रस की हिमायत में साबित कदम रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाबंदी का इतलाक बहरी जहाज समेत यूरोपीय बंदरगाहों के इस्तेमाल पर होगा। उन इकदामात में यूरोपीय यूनियन हर उस पहलू पर गौर करेगी जिसका ताल्लुक गैर कानूनी सरगर्मियों से होगा। कुर्बानी का जज्बा ऐसा होता है, मुहर्रम उल हराम का महीना इसार और इस्तकामत का दर्स देता है। पारा चुनार में शहादाए करबला की कुर्बानी की याद में अज़ादार खून के अतियात जमा कर रहे हैं। पारा चुनार में शहादाए करबला की कुर्बानी में याद में हुसैनी जज्बे सरशार अज़ादार मरीजों के लिए खून के अतियात जमा करा रहे हैं, जो पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में जरूरतमंद मरीजों को फराहम किए जाएंगे। 9 और 10 मुहर्रम पर खसूसी ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए खून के अतियात जमा किए जाते हैं। ब्लड बैंक के रहनुमाओं का कहना है कि ब्लड बैंक के मरकजी दफ्तर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तिबी इमदादी कैंप भी कायम किए गए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हुआ है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ब्लड वो डोनेट कर रहे हैं। तकरीबन हमारा टारगेट जो है ये 200 से अबव बैग्स है और ये जो ब्लड है ये हम मुख्तलिफ तलसीमिया पेशेंट्स और जो जनरल हॉस्पिटल्स के मरीज़ हैं इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशावर में KPK से जितनी भी मरीज़ आ रहे हैं इनको बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि शहादत हुसैन एक आर्ट है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी, वो अजीम कुर्बानी पेश की, अपने खून का नजराना बारगाह इलाही में पेश करने के बाद पूरी इंसानियत उस पर फ़ख्र करती है आज तक। और उसी खूनी हुसैन को मद्देनज़र रखते हुए आज़ादारान हुसैन भी अपनी खून का हर्जा हमें नहीं बल्कि हुसैन को पेश कर रहे हैं ताकि उसी के हवाले से खिदमत खैर की जाए। मियावाली के इलाके माड़ी इंडस में अहले इलाका की तरफ से चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सेहत के लिए सबीले हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे जाहिद अब्बास से। जी जाहिद। जी, मैं इस वक्त मियांवाली में माड़ी शहर दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला भर से मातमी संगतें जो हैं वो आ रही हैं और यहाँ पर दरिया सिंध को अबूर करके वांडा कुकड़ा वाला जा रही हैं। यहाँ पर दरिया सिंध के किनारे पर अहले इलाके की तरफ से सबील हज़रत अली असगर का भी अहतमाम किया गया है। मेंबर इस्लामी रद्दी कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सेहत और सलामती के लिए और उनकी खिदमात को देखते हुए अहले इलाके ने यहाँ पर सबील का अहतमाम किया है। इस वक्त हमारे साथ माड़ी शहर के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इस सबील को लगाया है और किस मकसद के लिए लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबील जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम आज नामी मुहर्रम उल हराम है, उस हवाले से लगाई गई है और अहले इलाका की तरफ से मौलाना सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेहत और सलामती के लिए सबील का अहतमाम किया गया है। इस सबील में शरबत और सादा पानी दिया जा रहा है। तमाम मोमिनीन यहाँ से पानी पी रहे हैं और दरिया क्रॉस कर रहे हैं। ये अहले इलाका की तरफ से अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेहत और सलामती के लिए इस सबील का अहतमाम किया गया है। जी, जैसे आपने सुना कि अहले इलाका ने अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की खिदमात को देखते हुए उनकी सेहत और सलामती के लिए यहाँ पर सबील हज़रत अली असगर का अहतमाम किया है। दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। मियांवाली के हर शहर से मातमी संगतें जो हैं वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ से वांडा कुकड़ा वाला जाकर पुरसा देंगी और यूँ ये पूरा दिन। जाहिद अब्बास साहब मियांवाली से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। करबला वालों का गम हर ज़माने और इंसानियत के लिए यकसां है और इस गम में कुदरत ने ऐसी कशिश रखी है कि मरीज हो या बच्चे वो भी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरसादारी के लिए पहुंच जाते हैं। जिक्र हुसैन की राह में जमाने की सख्ती या सेहत की खराबी भी हाइल नहीं हो सकती। यही वजह है कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अगर बीमारी की वजह से चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पर ही पहुंच जाते हैं। गर्म मौसम और वबा भी अज़ादारान इमाम मजलूम करबला को सोगवारी से न रोक सकी। अज़ादारों का कहना है कि करबला वालों ने जिस तरह जालिम और जाबिर का मुकाबला किया, ये मौसम और बीमारी क्या, हमारी तो उन पर जाने भी कुर्बान।
हमारी गोदों और उंगली पकड़े ये बच्चे शहजादे अली असगर और शहजादे कासिम से बढ़कर तो नहीं, जिन्होंने दीन मोहम्मदी को अपनी जानें देकर बचाया। खराबी सेहत की वजह से जो चल नहीं सके वो व्हीलचेयर पर इस्लामाबाद के मरकजी जुलूस में शरीक हुए। इसी तरह वालिदैन और बहन भाइयों की उंगलियां पकड़कर बच्चे भी जुलूस में पहुंचे। कोरोना की वजह से जगह जगह सैनिटाइजर भी किया जाता रहा। करबला का यही पैगाम है कि हक की राह में किसी उज़र से काम नहीं लिया जाए, जिस भी हालत में हो जालिम के खिलाफ एहतजाज बुलंद करना चाहिए। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 रुकनी फौज, इस्मत तहारत और बच्चों के हमरा यजीदी फौज के सामने कलमा हक बुलंद किया। कुर्रे-अर्ज़ पर अहले ईमान आज उसी अजीम कुर्बानी की याद में हक परस्तों को याद कर रहे हैं। नामवर शायर और मेजबान तारिक अजीज ने शहनशाह वफा हजरत गादी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मैदान जंग को रुखसती को तहत लफ्ज में कैसे बयान किया, आप भी मुलाहिजा कीजिए। तुम कुव्वत बाजू हो, मेरे जिस्म की जान हो, लश्कर के अलमदार हो, हैदर के निशान हो, बेहतर है जो खंजर मेरी गर्दन पर रवां हो। मरने के तुम्हारे ये नहीं दिन के जवां हो, इस गम में करें सब्र, ये वो गम नहीं भाई, ओझल हुए आंखों से तो फिर हम नहीं भाई। क्यों कर तुम्हें भाई का रुलाना है गवारा, इस वक्त में लाजिम है कि दो साथ हमारा, अब पासो तुम या अली अकबर मेरा प्यारा, वो आंखें तो तुम हो मेरी पीरी का सहारा। तुम दोनों की फुरकत भी जो शब्बीर सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा। ये सुन के अलमदार पर रिक्कत हुई तारी, सर शाह के कदमों पर झुकाया कई बारी, की अर्ज़ आका से बसत गिरिया जारी। इन कदमों पर हजरत के फिदा जान हमारी, किस काम के गर आए न काम आपके आगे। इज्जत हो जो मर जाए गुलाम आपके आगे। तकदीर मुझे आलमी मंजरनामे से खबर दें और आपको बताएं कि समुद्री तूफान लोरा लुजियाना में तबाही मचाने के बाद आर्कांसस की जानें पड़ने लगा। लुजियाना में समुद्री तूफान 14 जाने ले गया, मकानात तबाह हो गए, हजारों अफराद बेघर हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी रियासत लुइजियाना में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान ने रियासत आर्कांसस का रुख कर लिया है। ताहम इसकी शिद्दत कम होने की वजह से नुकसान का अंदेशा कम है। लुइजियाना के साहिल पर समुद्री तूफान लौरा टकराने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में 14 अफराद हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी और हजारों बेघर हो गए। लुइजियाना के साहिली इलाके में 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा कर रख दिया है। दरख्त, बिलबोर्ड्स और खंबे गिर गए हैं। तूफान के नुकसानात में इजाफे का खदशा अभी भी बरकरार है। अमरीका में जारी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। महकमा इंसाफ ने जैकब ब्लैक के वाक़े की FBI से तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जारी मुजाहरे फसादात की सूरत इख्तियार कर गए। लाखों अमरीकी मुजाहिरीन वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन ने अमरीकी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खेलों की टीम्स ने नस्ल परस्ती और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मैचेस मुलतवी कर दिए। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में दोबारा तेजी उस वक्त आई जब पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोलियों का निशाना बनाया। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम इकदाम उठाते हुए फेडरेशन के लिए
5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ को मुल्क में हॉकी के मयार की बहाली के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज ने हमेशा खेलों बिलखसूस हॉकी के फरोग में ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हॉकी की बहाली में गहरी दिलचस्पी ले रही है और इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आर्मी चीफ ने आर्मी वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देने का वादा किया। मैनचेस्टर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया और बेनतीजा खत्म हो गया। मैनचेस्टर में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में इंग्लैंड को पहली ओवर में ओपनर जॉनी बेयरस्टो की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा जब वो 3 रन के स्कोर पर अहमद वसीम की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए। पहली विकेट के बाद डेविड मिलान और टॉम बेंटन बिलतरतीब 23 और 71 रन की जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के मजमूई स्कोर में मुसलसल इजाफा करते रहे। मिलान को शादाब खान की गेंद पर मोहम्मद हफीज ने रन आउट किया जबकि शादाब की गेंद पर अहमद वसीम ने बेंटन को कैच लेकर पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बना लिए। अभी 4 ओवर्स का खेल बाकी था कि बारिश के बायस खेल को रोक दिया गया। बारिश का सिलसिला तवील होने पर मैच मनसूख कर दिया गया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।